નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, એમના અસાઇનમેન્ટના 1 થી 5 પ્રશ્નો છે. એમાંથી 1 થી અને 3 જે પ્રશ્નો છે એમના ઉત્તરો જોઈ ગયા છીએ. હવે જે 4 અને પ્રશ્ન 5 બાકી છે તો એના ઉત્તરો આજે આપણે જોઈશું. તો આપણે શરૂઆત કરીશું પ્રશ્ન 4 અથી. એમાં છે निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो आ मुहावरा ने આપણે अर्थ લખવાનો છે અને પછી એમનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. એમના અર્થ તો આપી દીધા છે, પરંતુ વાક્ય પ્રયોગ જે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે કરવાના રહેશે. પહેલું છે ચેન આના, તો એનો જવાબ આવશે માનસિક શાંતિ મિલના. તો એક ઉદાહરણ તરીકે તમને કહી દઉં છું કે ચેન આના એટલે એનો અર્થ થાય છે માનસિક શાંતિ મિલના. તો વાક્ય પ્રયોગ આપણે એનો એવી રીતે કરશું કે बेटे को बहुत दिनों के बाद घर पे आया देखकर माता को चैन आया. તો એવી રીતે આપણે બીજા જે છે એમનો પણ તમારે વાક્ય પ્રયોગ જાતે કરવાના છે. બીજું છે मुंह मोड़ना, तो संबंध न रखना, विमुख होना. 3 आँखों से गुजरना, देखना. 4 છે लट्टू होना, मुग्ध होना. 5 हृदय पर सांप लौटना, तो ईर्ष्या पैदा होना, आँखें गड़ाना, ध्यान से देखना. 7 कानों तक पहुँचना, तो सुनना. 8 दिल टूटना, निराश हो जाना, सिर मारना, बहुत सोच विचार करना. 10 फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना. 11 છે आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना. वे ब विभाग છે निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए. 1 दास, तो એમનું લિંગ પરિવર્તન થશે દાસી. 2 છે ધોબી, ધોબીન. 3 સ્વામી, સ્વામીની. 4 છે વિદ્વાન, વિદુષી. 5 છે બાબુ, તો બબુઆઈન. 6 છે બુઢા, તો બુઢિયા. 7 છે શેર, શેરની. 8 પંડિત છે, તો એનું પંડિતાઈન થશે. આગળ છે ક વિભાગ निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए. तो पहलू છે सहेली, तो सहेलियाँ. सेना, सेनाएँ. कहानी, कहानियाँ. तिथि, तिथियाँ. चूड़ी, चूड़ियाँ. गमला, गमले. वस्तु, वस्तुएं. चीज, चीज़ें. वचन परिवर्तन એટલે કે શું, તો સહેલી એટલે શું થશે, એક સહેલી, તો એને આપણે બહુવચનમાં કરીશું તો સહેલિયા થશે. પછી સેના, તો એને આપણે વચન પરિવર્તન કરીશું તો સેનાએ થઈ ગયું. તો એવી રીતે આ આપણે વચન પરિવર્તન કરીને એમના જવાબો પણ જોયા. આગળ આવશે ડ વિભાગ निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. તો અહીંયા જે વિશેષણો આપ્યા છે એમને આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે. તો જોઈશું. પહેલું છે અચ્છા, તો ધર્મેશ એક અચ્છા લડકા હૈ. 2 છે સુંદર, મોર એક સુંદર પક્ષી હૈ. 3 प्रिय, मुझे बरसात की ऋतु बहुत प्रिय है. 4 नंबर कृपालु, तो ईश्वर बड़े कृपालु है. 5 बुरा, तो बुरा समय सबका आता है. 6 છે ईमानदार, तो कुत्ता ईमानदार प्राणी माना जाता है. 7 છે अमीर, मेहनत करने से लोग अमीर बनते हैं. 8 नंबर છે हमारे देश में अनेक वीर सैनिक है. तो आ रीते विशेषणोने આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો. હવે છે प्रश्न 4 નો એ વિભાગ निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो એમાં જે આ શબ્દકોશ
ના ક્રમ પ્રમાણે લખવાનું છે। તો અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એ ઉલટ સુલટ છે, તો એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીશું। તો પહેલું છે પ્યાસી આંગન સાગર ઇન્સાન, તો એને આપણે શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવશું। તો આપણે જ્યારે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાનું હોય છે ત્યારે શરૂઆત આપણે સ્વરથી કરીએ છીએ। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં શું આવશે? તો આંગન, પછી શું આવશે? ઇન્સાન, પછી પ્યાસી અને સાગર। તો આ રીતે આપણે પહેલાં સ્વર અને પછી વ્યંજનવાળા શબ્દોને મૂકીને પછી શબ્દકોશ પ્રમાણે આપણે એને ગોઠવી શકીએ। બે છે ઘાટી ગિરજાધર મુસ્કાન ચટ્ટાન, તો આમાં સૌથી પહેલાં શું આવશે? ગિરજાધર, પછી આવશે ઘાટી, ચટ્ટાન અને મુસ્કાન। તો આમાં આપણે જે સ્વરો છે એ આવતા નથી, તો આપણે જે વ્યંજનમાં સૌથી પહેલાં જે અક્ષર આવે છે એ પ્રમાણે ગોઠવ્યું છે। પછી છે 3 નંબર સંગ્રામ શાયર હમદર્દ ચિરાગ, તો સૌથી પહેલાં શું આવશે? ચિરાગ, શાયર, સંગ્રામ અને હમદર્દ। પછી 4 નંબર છે વિતાન ઉપર રેગિસ્તાન મંજિલ, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા શું છે? તો અહીંયા એક સ્વર છે, તો એ સ્વરને આપણે પહેલાં મૂકીશું, એના પછી આવશે મંજિલ, પછી રેગિસ્તાન અને વિતાન। તો આવા જે ઘણા બધા શબ્દો બીજા પણ આવી શકે છે, તો તમારે એ રીતે એ શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના હોય છે। જ્યારે ક્ષ, જ્ઞ જેવા શબ્દોથી શરૂઆત થતી હોય તો જ્ઞ અને જ્ઞ જે છે એ જ અને ક્ષ એ કની હરોળમાં આવી શકે છે। તો એવી રીતે આપણે શબ્દકોશમાં ગોઠવવાના હોય છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 4નો ઈ વિભાગ, નિમ્નલિખિત વિષય પર 4 વાક્ય લીખીએ। અહીંયા આપણને વાક્ય આપ્યું છે, તો એના વિશે આપણે 4 વાક્યો લખવાના છીએ। તો પહેલું છે નમક સત્યાગ્રહ, એ નમક સત્યાગ્રહ જે થયું હતું આંદોલન, એના વિશે આપણે લખવાનું છે। તો दांडी को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में इतिहास में जगह मिली है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की थी। बीजू है हिंद छोड़ो आंदोलन, तो एमा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। हवे आवे छे कि दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। तो अहींया नीचे आपने पेड़, बारिश, हाथी, बादल आ शब्दों आप्या छे, तो एमने लगती आपणे पहेलियाँ बनाववानुं छे। तो पहलू जोईए पेड़ छे, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। तो अहींया आ कार्य कोण करे छे? तो आवुं कार्य पेड़ एटले के वृक्ष करे छे। पछी छे बारिश, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। तो अहींया शुं आवशे? तो बारिश आवशे। चौथुं छे हाथी, मुंह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। तो अहींया शुं आवशे के एमां हाथी आवशे। आगळनुं छे बादल, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊँ, अंत कटे तो
बात बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बनूं मैं, कर लो तुम सब मुझको याद। तो आ रीते આપણે બાદલનું પણ પહેલી જોઈ લીધી। હવે આવે છે પ્રશ્ન 5, એનો છે અવિભાગ, જેમાં છે નિમ્નલિખિત વિષયો પર પત્ર લેખન કીજીએ। તો પ્રશ્ન 5 અવિભાગમાં આપણે પત્ર લેખન કરવાનું છે। તો સૌથી પહેલો પત્ર છે कि हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट से माननीय वर्ग शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। तो अहीं आपणे शुं लखवानुं छे पत्रमां, तो આપણે પત્રમાં 5 દિવસની છુટ્ટી એટલે કે રજા મંજૂર કરાવવા માટે એક પત્ર લખે છે પોતાના વર્ગ શિક્ષકને। તો એ કેવી રીતે કરીશું તો જોઈએ કે સૌથી પહેલાં આપણને અહીંયા એમનું જે એડ્રેસ છે એ આપી દેવામાં આવ્યું છે। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં જમણી બાજુ આપણે લખીશું 27 નીલકુંજ ગાંધી રોડ રાજકોટ 24 ડિસેમ્બર 2017। તો એ पत्र कोने लखे छे तो ये पत्र लखे छे कि सेवा में श्री वर्ग शिक्षक महोदय कक्षा 8 वर्ग सी। हाईस्कूलનું नाम શું છે તો નૂતન હાઈસ્કૂલ રાજકોટ। તો सेना बाबते पत्र लखवानो छे तो छुट्टियां मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। तो हवे पत्रनी शुरुआत करीशुं। पूज्य शर्मा जी, मेरे चचेरे भाई चंद्रकांत की शादी 28 दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाली है। शादी के इस अवसर पर हमारा पूरा परिवार कल सुबह की गाड़ी से अहमदाबाद जाने वाले हैं। लगभग 4 दिन वहाँ रहेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 26 दिसंबर से दिनांक 30 दिसंबर तक 5 दिनों की मेरी छुट्टियां मंजूर करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल में अनुपस्थित रहने से पढ़ाई की जो क्षति होगी उसकी पूर्ति मैं लौटने पर तुरंत ही कर लूँगा। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। અને પછી છેલ્લા શું આવશે તો આપકા આજ્ઞાકારી શિષ્ય હસમુખ જોશી। તો આ રીતે આપણે પત્ર લખવાનો છે। એમાં સ્વચ્છ અક્ષરે અને વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં તો એડ્રેસ અને પછી પેરેગ્રાફ પ્રમાણે આપણે જે આપણી રજૂઆત કરવાની છે એ થોડા શબ્દોમાં રજૂઆત કરવાની છે અને છેલ્લે આપણે પત્ર પૂરો કરીએ ત્યાં આપણે આપણું નામ આવશે। તો આ રીતે આપણે પત્ર લખવાના છીએ। એવી જ રીતે બીજો પત્ર છે। जामनगर शहर के एक मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ रहा है। वहाँ के एक नागरिक रसिकलाल दवे 56 सदाशिव पेड़ से नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते हैं। तो अहींया पण ऊपर आवशे लखनारनुं नाम अने एड्रेस अने ज्यां पत्र लखवानो छे एमनुं अहींया डाबी बाजू आवशे अने एमनी नीचे शुं आवशे कि कई बाबते कया विषये आपणे पत्र लखीए छीए ए। तो विषय छे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में। तो आ रीते आपणे पत्रनी शरूआत करीशुं अने पछी संबोधन अने एना पछी पत्रनी शरूआत करीशुं। तो आ रीते तमारे पत्र सुंदर अने स्वच्छ अक्षरोमां लखवानुं छे अने छेल्ला जे लखनार छे एमनुं नाम अने सही आवशे। त्यार पछी आवे छे त्रीजो पत्र। तो अशोक व्यास 713 लाखाजी रोड भावनगर से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड अहमदाबाद के नाम आवश्यक पुस्तकों की 5-5 प्रतियां मंगाने के लिए पत्र लिखता है। तो अहींया पण आपणे आगळना 2 पत्रोमां जोयुं एवी रीते एड्रेस आवशे, पछीनुं एड्रेस ज्यां आपणे पत्र मोकलीए छीए त्यांनुं आवशे अने विषय शुं छे कि अहींया तमारे शुं लखवानुं छे कि आवश्यक जे पुस्तको छे एनी 5-5 कॉपी आपणे मंगाववानी छे। तो 5-5
पुस्तकों की कॉपियाँ पाने के लिए प्रार्थना पत्र। एवी रीते तमारे अहींया लखवानुं छे। पछी शरूआत करवानी छे। तो आ रीते पत्र लखता तमने आवड़ी गयुं हशे अने तमे लखी पण शकशो। पछी आवे छे प्रश्न 5 नो ब विभाग। एमां तमारे शुं लखवानुं छे कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। के तमने अहींया शुं आपवामां आव्युं छे के कहानी एटले के वार्ता, वार्तानी रूपरेखा एटले के एमना मुद्दाओ आपवामां आव्या छे अने एना आधारे तमारे आखी वार्ता लखवानी छे अने एमने तमारे शीर्षक आपवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने अहींया मुद्दाओना आधारे वार्ता आपी देवामां आवी छे। तो तमारे ए वार्ता लखवानी छे, वांचवानी छे अने अंते सीख पण आपवामां आवी छे अने शीर्षक पण आपवामां आव्युं छे। तो ए रीते तमारे वार्ताओ लखवानी छे। अने जो तमने आ वार्ताओनी पीडीएफ जोईती होय तो तमारे अमारी आ चेनलने सब्सक्राइब करवानी छे अने तमारे कॉमेंट बॉक्स में जो पीडीएफ जोईती होय तो लखीने मोकलवानुं छे। पछी आवे छे बीजी वार्ता कि एक निर्दयी राजा गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई। तो नीचे तमने जवाब आपी देवामां आव्यो छे। तमे एने लखी शको छो, वाँची शको छो अने तमे स्क्रीनशॉट लईने पण ए वार्तानी तैयारी करी शको छो। पछी आवे छे त्रीजा नंबरनी वार्ता। एनो पण जवाब अने शीर्षक तमने आपी देवामां आव्यो छे अने सीख पण नीचे आपवामां आवी छे। पछी आवे छे निबंध। तो तमारे निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो एमां पहली छे ऐतिहासिक स्थल की सैर। तो ये निबंध तमने बधा ज मळी रहेशे। बधा निबंधोना जवाबो तमारी पासे छे। तो एने तमे स्क्रीनशॉट पण लई शको छो अने पीडीएफ मंगावी होय तो कीधुं ए रीते तमे कमेंट बॉक्स में लखीने मोकलशो तो तमने एमनी पीडीएफ पण मळी शकशे। चौथा नंबरनुं छे विज्ञान वरदान या अभिशाप। 5 छे श्रम का महत्व अने छठ्ठू छे एक डाकू की आत्मकथा। तो आ रीते तमने बधा निबंधो पण आपी देवामां आव्या छे। विद्यार्थी मित्रों, तमने जो अमारो विडियो सारो लाग्यो होय तो तमारे अमारा आ विडियो ने शेर करवानो छे, लाइक करवानो छे अने कॉमेंट करवानो छे। तो आवी ज रीते बीजा विषयोना असाइनमेंटना प्रश्नोना जवाबो जोवा माटे तमे अमारी आ चेनल ने हमेशा अमारी चेनल साथे जोड़ायेला रहेशो।